They are also important for examination point of view. DNA signal technology. So hello guys, first of all we will discuss on DNA sequencing. As we know that DNA is a very important biomolecule. It has all life characteristics in a living things that conserve all the characters which transferred from जनरेशन टू जनरेशन. सो डीएनए बहुत बड़ा एक मॉलिक्यूल है जिसमें पूरे जीवन के गुण कंजर्व रहते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये ट्रांसफ़र होते रहते हैं. डीएनए मॉलिक्यूल्स में फोर न्यूक्लियोटाइड्स रिपीटिंग करके पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं और देयर आर सो मेनी स्पेसेस and so many spaces are there non-functional. They are known as exons and introns. जो इंट्रॉन्स होते हैं दे आर फंक्शनल जीन्स और वो जीवन में हमको आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ दिस फंक्शनल जीन्स और डीएनए. इस क्वेश्चन के लिए बहुत से वैज्ञानिकों ने काम किया और निरंतर प्रयास करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम केमिकल मेथड डिस्कवर्ड की, जिसके थ्रू दे वर सक्सेस टू आइडेंटिफाई द सीक्वेंस ऑफ एनी डीएनए मॉलिक्यूल और एनी डीएनए जीन. So then after one valuable मेथड ऑल्सो डिस्कवर्ड बाय सेंगर पे भी काम किया था और प्रोटीन सीक्वेंसिंग के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड डिस्कवर्ड की थी. उन्होंने भी डीएनए सीक्वेंसिंग पर एक बहुत इम्पोर्टेंट मेथड को ईजाद किया. टुडे वी विल डिस्कस ऑन बोथ मेथड. केमिकल मेथड डिस्कवर्ड बाय मैक्सम एंड गिलबर्ट, एटिक डाइडियोसी मेथड डिस्कवर्ड बाय सेंगर. So DNA sequence is what? It is nothing. It is a technique for determining the base sequence of DNA. DNA में बेस सीक्वेंस क्या है इसका पता करने के लिए जो मेथड्स होती हैं, जो टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स की स्टडी हम करेंगे. दैट इज़ नोन एज द टेक्निक सीक्वेंस. द बेस सीक्वेंस ऑफ DNA कैन बी डिटरमाइंड बाय टू मेथड्स एज आई टोल्ड यू, केमिकल मेथड एंड एंजाइमेटिक डाइडॉक्सी मेथड. In chemical method is discovered by Maxam and Gilbert in 1977. After 2 years, Frederick Sanger discovered important techniques and that was faster than chemical method, was known as enzymatic dideoxy method. So we will discuss one by one in detail. Please try to listen carefully. Maxam Gilbert method is also known as selective chemical cleavage method. It is based on chemical cleavage of DNA at selective site. What is selective site? There is 4 types of bases are present in DNA. So adenine, guanine, cytosine and thymine. So इन चारों बेस में से किसी एक को टारगेट किया जाए, that site is cleaving site. That is also known as selective site. So it is based on chemical cleavage of DNA at selective site. आगे देखेंगे. This is the very important picture in which we are trying to focus on how to a small DNA segment is sequenced by Maxam Gilbert method or chemical cleavage method. See here, there is the small DNA segment in which 4 nucleotide or base sequence are present, A, T, C, G, A, T, C, G. The sequence is 5' to 3'. Now this DNA segment or single DNA segment is first of all
tagged with radio labeled P32 at 3 prime end. सबसे पहले इसको 3 prime end पर P32 से टैग किया गया. So this is the tagged DNA segment at 3 prime end. This DNA tagged radio labeled tagged DNA used here as a sample, and it is divided into 4 test tubes. 1, 2, 3, 4. So same sample is present in all tubes. Then we add their different bases removal reagent in all different tubes. In first tube we add their adenine removal reagent. In second tube we add their guanine removal reagent. In third tube we add their cytosine removal reagent. In fourth tube we add their thymine removal reagent. अब हम देखेंगे कि फर्स्ट ट्यूब में जिसमें एडेनिन रिमूवल रिएजेंट ऐड किया है, सो इन sample DNA their first position adenine was present, so this adenine will remove and here a dash only. And second adenine was present at 5th position, so here also a dash, means adenine यहाँ से और एडेनिन यहाँ से रिमूव हो गया है. ठीक है, पहले सेगमेंट में पॉसिबिलिटी यहाँ से रिमूव हुआ, दूसरे में इधर से रिमूव हुआ. ठीक है, इसी प्रकार सेकंड ट्यूब में जिसमें वी हैव एडेड देयर गुआनिन रिमूवल रिएजेंट, तो जी को वो रिमूव कर देगा. तो जी फोर्थ पोजीशन पर और लास्ट पोजीशन पर है, तो फोर्थ पोजीशन और लास्ट पोजीशन गुआनिन रिमूव हो गया है. एंड इन थर्ड ट्यूब सी साइटोसिन हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम सेकंड पोजीशन and second last position. And in last tube we have added there the thymine removal reagent, so T second position पर और T third last position से remove हो गया. So जहाँ जहाँ से नाइट्रोजनस बेस रिमूव हुए हैं, that is the prone site to cleavage of the DNA segment. So वहीं से DNA ब्रेक होगा, वहाँ से तोड़ देते हो. cleavage at the baseless site. So next step is cleaving the बेसलेस साइट. तो यहाँ पर देखिए जो इसमें फर्स्ट ट्यूब थी उसमें इधर से और यहाँ से ये डीएनए सेगमेंट ब्रेक होगा, और इन फर्स्ट ट्यूब वी विल फाइंड देयर द 3 सेगमेंट, 1 सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट प्लस दिस सेगमेंट. सो अमंग 3 सेगमेंट्स वी हैव फाइंड देयर 2 रेडियो लेबल्ड सेगमेंट्स, 1 लार्ज एंड सेकंड इज स्मॉल. ठीक है, जब ये हम जेल में रन कराएंगे सैंपल को, सो वी विल फाइंड देयर 2 बैंड्स, एक इसका बैंड मिलेगा और दूसरा स्मॉल सेगमेंट का बैंड मिलेगा. इसी प्रकार जिसमें बेसलेस जो साइड थे दिस एंड दिस यहाँ से कट करेगा, तो यहाँ पर हमको 4 सेगमेंट मिले, 1 2 3 4. इसमें P32 लिंक्ड ये वाला सेगमेंट है और ये है. So two segments will run, all segments will run, but we will find there the 2 bands because 2 segments have their radio labeled phosphorus. तो जब ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो ऑटो रेडियोग्राफी में हमको वही बैंड विजुलाइज होगा जिसमें P32 लिंक्ड होगा. एंड थर्ड ट्यूब में भी हमको 2 बैंड मिलेंगे जो इस प्रकार से विजुलाइज होंगे, और फोर्थ ट्यूब में भी हमको 2 बैंड मिलेंगे जो इस प्रकार से विजुलाइज्ड होंगे. सो ऑल ट्यूब्स विल रन साइमल्टेनियसली इन द सेम जेल स्लैब विद A, G, C एंड T लेन. इस लेन में हम पहला वाला सैंपल लोड करते हैं, G वाले लेन में जिसमें हम G रिमूवल रिएजेंट ऐड किया था वो वाला सैंपल रन कराते हैं, और थर्ड और फोर्थ लेन में हम C रिमूवल और T रिमूवल वाले रिएजेंट वाले सैंपल रन कराते हैं. आफ्टर the incubation of running the sample, when the gel is visualized by auto radiography, we will find X-ray film
to looking this type of bands. तो हमको ये 8 बैंड दिखेंगे ऑटो रेडियोग्राम में, और उसको फिर हम रीड करते हैं फ्रॉम अपर टू लोअर साइड, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की तरफ हम इसको रीड करेंगे. तो वी विल फाइंड दैट फर्स्ट पोजीशन पर जो है वो एडेनिन वाला ए लेन में जो हमें पहला बैंड मिला है वो ए लिखेंगे, और सेकंड जो बैंड मिला है दैट इज़ टी लेन में मिला है तो टी लिखेंगे, और तीसरा बैंड जो है दैट इज़ इन सी लेन, and fourth band is found in G lane, and fifth band again found in A lane, so we will write here A, and next band we have find there in T lane, so we will write here T, and second last band we have find in C lane, so we will write here C, and last band we have find in G lane, so we will write here G. So this is the sequence A T C G A T C G. It is same as DNA we have taken in as a sample. So this is the sequencing we have identified this Maxam-Gilbert method. Some author using a second and third lane as GA plus G and C plus T in place of G and C lane respectively. कुछ लोगों ने जो है इस जो जी लेन है उसको ए प्लस जी और सी लेन को ए प्लस टी प्लस सी लेन के रूप में भी यूज़ करते हैं. वी विल डिस्कस इन लेटर. नाउ मूव्स द डीएनए टू बी सीक्वेंस्ड इज लेबल्ड एट वन एंड विद न्यूक्लियोटाइड हैविंग अ p32. Reagent that destroy or remove one specific base are used to remove bases from DNA. 4 sets of p32 labeled DNA are treated with 4 different reagents. These reagents removes adenine, guanine, cytosine, thymine respectively, as I told you, and condition are so chosen that only one base is removed per DNA strands. एक बार में एक ही DNA base जो है वो remove होगा. Now several strands of DNA are treated with each particular reagent. एक सैंपल में so many DNA samples are present, तो एक बार में एक न्यूक्लियोटाइड बेस रिमूव होगा, देन दूसरे सेगमेंट में दूसरे पोजीशन का न्यूक्लियोटाइड रिमूव होगा. The given base is removed randomly from all the position sites where it was present. Chain breaks and then induced at baseless site. जहाँ जहाँ से न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनस बेस रिमूव किए हैं वहाँ से वो DNA कट होगा. The fragments produced in the 4 tube are separated by electrophoresis on polyacrylamide gel in the 4 parallel lanes. Location of p32 labeled fragments are identified autoradiography. जो जेल है उसको हम डेवलप्ड करते हैं, डेवलप करने ऑटो रेडियो दैट इज प्रोसेस कॉल्ड ऑटो रेडियोग्राफी. एंड ऑटो रेडियोग्राम में हमको वो उस जगह हमको बैंड दिखाई देंगे जहाँ पर p32 लेबल्ड फ्रेगमेंट होगा. Now the smallest fragments moves the faster from the point of application. जेल में जब ऊपर से हमने सैंपल लोड किया है तो वहाँ से फास्ट वो करेगा जो जिसका स्मॉल सेगमेंट होगा. एंड लार्जेस्ट फ्रेगमेंट विल मूव फास्ट. वो जो है वो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट होगा वो स्लो मूव करेगा जो हमें ऊपर दिखाई देगा, और जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट होगा वो फास्ट मूव करेगा, वो नीचे तक जेल में नीचे तक जाएगा. The other fragments are in between depending on their size. Relative size of fragments indicate the distance between the p32 labeled and the destroyed base. By arranging the fragments in the 4 lanes in the decreasing order of size, the sequence of bases from 5' and to 3' and can be deduced by reading the bands in autoradiogram. Now relative size of fragments indicates the distance between p32 label and the destroyed base. By arranging the fragments in the 4 lane in the decreasing order
of size, the sequence of bases from 5' end to 3' end can be deduced. अरे सुनो, बुलाना जरा इसको. सुनो, ये वो चालू नहीं हो रहा है, आगे नहीं बढ़ रहा है. ठीक. क्या हो गया था? अब फिर बंद नहीं होगा? देखो ना सर, मैं दोबारा. हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है. Now the same slide is repeating here. जैसे कि हमने बताया ना, ये डीएनए सेगमेंट था, इसको ये 4 सैंपल लिए हैं और AGCT रिमूवल रिएजेंट से ट्रीट किए हैं. और जैसे ये इस वाले में ए जहाँ जहाँ है वह रिमूव करेगा, जी वाले में, सेकंड वाले में जहाँ जहाँ जी है वहाँ रिमूव करेगा, और तीसरे वाले ट्यूब में जहाँ जहाँ सी साइटोसिन प्रेजेंट है वहाँ रिमूव करेगा, और थर्ड वाले में जहाँ जहाँ थाइमिन है वो रिमूव करेगा. एंड नेक्स्ट स्टेप इज क्लीवेज एट द बेसलेस साइड. जहाँ जहाँ से ये नाइट्रोजनस बेस क्लीव्ड हुए हैं, डिस्ट्रॉय हुए हैं, दैट साइड विल बी कट एंड द फ्रेगमेंट विल बी फॉर्म. तो स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट्स में टूट जाएंगे. एंड रेडियो लेवल एंड ऑल फ्रेगमेंट्स विल बी रन इन द जेल, एंड रेडियो लेवल्ड फ्रेगमेंट्स विल विजुलाइज्ड इन ऑटोरेडियोग्राम. ओके. एंड इसको रीड कैसे करेंगे? ऊपर से नीचे हम जाएंगे 5' to 3' एंड. सो ATCG ATCG, दिस सीक्वेंस विल बी फाइंड आउट बाय द रीडिंग ऑफ ऑटोरेडियोग्राम. दिस सीक्वेंस इज सिमिलर टू दैट ऑफ सैंपल वी हैव यूज्ड इन DNA सीक्वेंसिंग. सो दिस इज़ द अनदर, एज आई टोल्ड यू कि इसमें ए की जगह A+G लेन यूज़ किया है, और सी की जगह T की जगह C+T लेन यूज़ किया है. इट इज़ नथिंग. पहले वाले सैंपल में जहाँ हमने एडिनिन रिमूवल रिएजेंट यूज़ किए थे, इन दिस केस एडिनिन और गुआनिन दोनों प्रकार के रिएजेंट डालेंगे, और थाइमिन वाले में थाइमिन प्लस साइटोसिन रिमूवल रिएजेंट डालेंगे. ठीक है. और जी वाले में जी रिमूवल ग्वानिन रिमूवल रिएजेंट, या सी वाले में सी रिमूवल रिएजेंट डालेंगे. जब इनको रन कराते हैं, सो वी विल फाइंड दैट द डिफरेंट सेगमेंट, डिफरेंट बैंड्स. सो इसका लॉजिक ये है कि A+G बैंड में जो ये फर्स्ट बैंड है, इसमें हम केवल A रीड करेंगे, एंड सेकंड में जो A आया है और G भी उसी के सामने है, दैट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ G इज़ हियर, सो वी विल रीड हियर एज G. और T+C में केवल एक ही बैंड दिख रहा है, तो हम वी विल रीड एज थाइमिन हियर. एंड इन दिस केस C और T दोनों में सेम बैंड एक ही डिस्टेंस पर है, सो दिस विल रीड एज द मेजॉरिटी हियर. एंड नेक्स्ट इज इसमें केवल A+G वाले में केवल एक ही बैंड है, और वो किसी भी G बैंड के साथ में शेयर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वी विल रीड एज एडिनिन. एंड हियर द C+T में केवल एक ही बैंड है, इस C के साथ शेयर नहीं कर रहा है, दैट मीन्स वी विल रीड एज T. एंड इन लास्ट T+C में बैंड दिख रहा है और C में भी बैंड दिख रहा है सिमिलर डिस्टेंस पर, दैट मीन्स वी विल रीड एज साइटोसिन. सो दिस इज द another way to read the autoradiogram in Maxim Gilbert method. So we don't be worried कि इसमें AGCT लेन बनाए थे, और इसमें आपने A+G और अलग अलग ऑथर्स में अलग अलग प्रकार से ये डिस्क्राइब किया गया. सो यू कैन चूज एनी वन. Advantage and disadvantage of Maxim Gilbert method. Advantages are purified DNA can be read directly
and homopolymeric and heteropolymeric DNA sequence DNA can be sequenced by this method, and Maxam-Gilbert method can be used to analyze DNA protein interactions, and this chemical method can be used to analyze nucleic acid structure. And this disadvantage of Maxam-Gilbert method is it requires extensive use of hazardous chemicals. यहाँ पर radioactive elements use हो रहे हैं, तो इसलिए it is very dangerous, so it not be preferred. It has a relatively complex setup and technically complexity, so this method is rarely used, and it is difficult to scale up and cannot be used to analyze more than 500 base pair. 500 base ज़्यादा है, इसको करने में बहुत प्रॉब्लम होती है. So ये method theoretically is important, but practically is not more important. Now next method is Sanger's dideoxy method, and it is also called enzymatic termination method. इन दिस मेथड, इसमें डीएनए को रेप्लिकेट करते हैं और रेप्लिकेशन के दौरान रेप्लिकेशन को ब्लॉक किया जाता है डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड से. सो हाउ वी विल ब्लॉक the newly synthesized DNA strands on templates by using DD nucleotide. Sanger used dideoxy nucleotide to sequence DNA, and he had earlier devised protein sequence method, as I told you. इन्होंने protein sequencing पे भी बहुत अच्छा काम किया है, and later on they have used there to discovered DNA sequencing enzymatic method. Now these are the two nucleotides, and the 2-deoxynucleotide triphosphate. 2-deoxy means second pentose sugar के second carbon पर OH नहीं है, यहाँ पर H अकेले लगा हुआ है. That means it is a 2-deoxyribonucleoside triphosphate or 2-deoxyribonucleotide, and here it is 2'3' dideoxyribonucleotide or ribonucleoside triphosphate. So second कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर यहाँ पर OH नहीं है. तो जब थर्ड कार्बन पर OH हटा दिया है, दैट मीन्स जब डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी. ठीक है, डीएनए सीक्वेंसिंग स्टॉप हो जाएगी. सो देखें कैसे हुआ. सेंगर्स मेथड इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल्ड इंटरप्शन ऑफ रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन को कंट्रोल करते हैं इंटरप्शन के द्वारा. द डीएनए स्ट्रैंड टू बी सीक्वेंस्ड इज यूज्ड एज ए टेम्पलेट फॉर रेप्लिकेशन. डीएनए के डीएनए स्ट्रैंड को टेम्पलेट की तरह यूज करेंगे. द रेप्लिकेशन इज डन इन 4 टेस्ट ट्यूब्स, and each test tubes contains following reagents. The template strand जिसका DNA हमको रेप्लिकेट करना है. प्राइमर आप जानते हैं, it is a short nucleotide segment which used to start the replication. बिना प्राइमर के कोई भी जो DNA polymerase है that cannot bind and move further. And deoxyadenine triphosphate, deoxyguanine triphosphate, deoxycytosine triphosphate, and deoxythymine triphosphate. These are the normal nucleotides which also used for this method. And DNA polymerase जो sequence करेगा उसको polymerization करेगा. And P32 labeled 1 dideoxy nucleotide. और ये dideoxy जो nucleotides हैं, they are the P32 labeled. इसमें 2 चीज़ें होती हैं. एक तो क्या है, डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को रेडियो लेबल्ड कर सकते हैं और प्राइमर को भी रेडियो लेबल्ड कर सकते हैं. सो हियर वी आर यूजिंग दीज रेडियो लेबल्ड डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स P32 लेबल्ड. सी 4 ट्यूब्स वी आर प्रिपेयरिंग हियर. इनमें 4 ट्यूबों में अलग अलग जो हमने सैंपल तैयार किए हैं. इसमें प्राइमर, डीएनए पॉलीमरेज एंड फ्री ऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड मीन्स नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स. ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड्स हैं. ये all these 3 things are same in all tubes, and dideoxy nucleotides are different. Dideoxy ATP, dideoxy TTP, dideoxy GTP, dideoxy CTP included here. जिसमें dideoxy ATP ऐड किया है जहाँ, और यहाँ पर नॉर्मल ATP भी है, नॉर्मल डिऑक्सी एडिनोन ट्राइफॉस्फेट भी जुड़ा हुआ है. तो दैट मीन्स दिस ATP एंड दिस deoxy and dideoxy ATP will compete to each other for in replication. कहीं कहीं पर ATP नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जुड़ेगा. जब नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जब DNA पॉलीमरेज ऐड करेगा तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ेगा. जहाँ पर भी डाइडिऑक्सी
ATP ऐड कर देगा, वहाँ पर रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा. सो दिस इज द रेप्लिकेशन स्टॉप रिएजेंट. सो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड इज यूजिंग हियर, जैसे हमने कहा, क्योंकि इसके तीसरे नंबर पर जो है वो OH रिमूव हो गया था. देखिए ये थर्ड पोजीशन पर ये OH जो है नहीं, तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड नहीं बनेगा, तो रेप्लिकेशन आगे नहीं बढ़ेगी. सो हियर थाइमिन जहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये वाला, ये थाइमिन के साथ में नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड के साथ कम्पीट करेगा. यदि नॉर्मल थाइमिन वाला डीऑक्सी TTP ऐड होगा तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ेगा, और यदि ये ऐड हो जाता है तो रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी. यह डाइडिऑक्सी GTP विल यूज, इट विल कम्पीट टू नॉर्मल GTP, है ना. तो इसके साथ में यदि ये ऐड होता है तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ेगा, ये ऐड हो जाएगा तो रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी. इसी प्रकार डाइडिऑक्सी CTP विल स्टॉप एट द पॉइंट वेयर इट इज इंसर्टेड. यदि नॉर्मल वाला डीऑक्सी CTP ऐड होगा, दैट विल रेप्लिकेशन विल मूव, और यदि DD CTP ऐड होता है तो वहाँ पर रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा. सो दिस द 4 सैंपल वी हैव प्रिपेयर्ड हियर. द प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम. सो प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, इसका मतलब जो टेम्पलेट होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला टेम्पलेट होगा, उसके 3 प्राइम एंड पर दिस प्राइमर विल बी अटैच्ड. जिसमें TT सीक्वेंस है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड उसके 3 प्राइम पर होना चाहिए. T की जगह A, G की जगह C एंड इसकी जगह A, इसकी जगह A. तो A सीक्वेंस पर ये ऐड हो जाएगा. देन DNA पॉलीमरेज विल रिकॉग्नाइज दिस टेम्पलेट एंड रेप्लिकेशन विल स्टार्ट. और रेप्लिकेशन जब स्टार्ट होगा तो ये नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जहाँ जहाँ ऐड होते जाएंगे, रेप्लिकेशन बढ़ता जाएगा. जैसे ही डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, रेप्लिकेशन विल बी स्टॉप. इसी प्रकार इस चारों प्रकार की ट्यूब्स में इसी प्रकार से रेप्लिकेशन होंगे और रेप्लिकेशन स्टॉप होंगे. सो इन ट्यूब वी हैव एडेड देयर इज DNA sample. So many number of DNA samples are here as a template. So they will replicate in different position, and so different size of fragments will be formed. So see here, listen, the dideoxynucleotide compete with the normal deoxynucleotide. If abnormal normal nucleotides enter the growing chain, replication continues. If a dideoxynucleotide enters the growing chain, replication stops. Several cycles of replication are carried out. The relative concentration of the dideoxynucleotide and that dideoxy analog enter randomly at different sites in different cycles of replication. After several cycles of replication, strands of different lengths are formed. जब रेप्लिकेशन कई साइकिल्स हो जाएंगी तो उसमें कुछ कई जगह पहले डाइडिऑक्सी ऐड हो जाएगा, कुछ में बाद में ऐड होगा, तो डिफरेंट साइज के रेप्लिकेशन स्ट्रैंड्स फॉर्म्ड इन द 4 ट्यूब्स आर सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस. इलेक्ट्रोफोरेसिस इज डन इन 4 पैरेलल लेन्स. द फ्रेगमेंट्स आर विजुअलाइज्ड बाय ऑटोरेडियोग्राफी. The pattern of bands of the autoradiogram gives the sequence of bases. This sequence is complementary to the template strand. जो sequence आएगा वो complementary strands के template का complementary strand होगा. Now see here, once again this slide is showing the Sanger method. Tube 1, tube 2, tube 3, tube 4. जैसे कि हमने वो चारों ट्यूब दिखाई हैं, इसमें ऐड किया है, जिसका जो सीक्वेंस है वो ATCG और इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस का होगा. नाउ दीज स्टैंड्स आर डीनेचर्ड ऑफ दिस DNA. तो दोनों स्टैंड अलग हो गए हैं. एंड जैसे ही दोनों स्टैंड अलग होते हैं, द प्राइमर विच एडेड देयर that recognize the specific site of either of this stand. तो जो स्टैंड्स में वो इसके प्राइमर के सीक्वेंस होंगे वहीं ऐड होगा. दैट स्टैंड विल यूज एज ए टेम्पलेट स्टैंड. और जैसे ही प्राइमर ऐड होता है, देन DNA पॉलीमरेज विल अटैच एंड रेप्लिकेशन विल स्टार्ट. सो यहाँ पर नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं और डाइडिऑक्सी ATP है. तो जब नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड आगे रेप्लिकेशन होगा, जैसे ही डाइडिऑक्सी ऐड होगा रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा. इन दिस केस यह पहले T है और T पर पहले ही
डाइडिऑक्सी एटीपी ऐड हो गया है, तो रेप्लिकेशन विल बी स्टॉप हियर। तो केवल एक न्यूक्लियोटाइड वाला यहाँ पर सेगमेंट बनेगा। इन सेकंड केस सी हियर, पहले वाले टी पर तो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया है, तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ा और जाने के बाद जो सेकंड थाइमिन आया है उस सेकंड थाइमिन पर डाइडिऑक्सी एटीपी ऐड हुआ है, तो रेप्लिकेशन यहाँ पर स्टॉप हुई है। तो इन दिस केस वी हैव फाइंड दैट द टू सेगमेंट, टू रेडियो लेवल्ड सेगमेंट, एक ये वाला और दूसरा ये वाला, है ना। तो जब ये जेल में रन करेंगे तो डेफिनेटली वी विल फाइंड देयर द टू विजुअलाइज्ड बैंड। एक ये वाला जो बड़ा, जो हैवी बैंड होगा, जो बड़ा बैंड होगा, दैट विल बी मूव हियर एंड स्मॉलेस्ट विल गो फास्टर। ओके, इन द सेम थ्योरी विल रिपीट इन ईच ट्यूब। इसमें देखिए, इसमें भी जो प्राइमर बाइंड होने के बाद डीएनए रेप्लिकेट करेगा और डीएनए फर्स्ट स्टैंड में जो टी की जगह ए ऐड हो गया नॉर्मल, ए की जगह टी ऐड हुआ है नॉर्मल, जी की जगह सी ऐड हुआ है नॉर्मल, और जैसे ही साइटोसिन आता है यहाँ पर रेडियो लेवल्ड जी डी डाइऑक्सी जीटीपी ऐड हुआ है और रेप्लिकेशन हैज बीन स्टॉप हियर। एंड इन नेक्स्ट केस दूसरे टेम्पलेट में देखिए लास्ट में जो सी है वहाँ पर डाइडिऑक्सी गुआनिन ऐड हुआ है, तो रेप्लिकेशन यहाँ तक हुई है और यहाँ स्टॉप हो जाती है। सो यहाँ पर दो रेडियो लेवल्ड डीएनए रेप्लिकेटिंग हमको प्रोडक्ट मिले हैं। थर्ड ट्यूब में देखिए, थर्ड ट्यूब में DDCTP डाइडिऑक्सी CTP हमने ऐड किया है। जहाँ जहाँ ये ऐड होगा रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। यहाँ पर पहला जो G आया उसके अगेंस्ट जो C ऐड हुआ है यहाँ पर रेप्लिकेशन स्टॉप हो गई, और दूसरा G जो है सेकंड लास्ट पोजीशन पर है, तो रेप्लिकेशन यहाँ से आगे तक गई है क्योंकि इस पोजीशन पर सेकंड टेम्पलेट पर नॉर्मल G ऐड हुआ है, इसलिए रेप्लिकेशन आगे बढ़ी है। और रेप्लिकेशन आगे बढ़ के जैसे ही नेक्स्ट सेकंड लास्ट पर जो G आता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो C है वो नॉर्मल ना होकर के डाइडिऑक्सी CTP ऐड हुआ है, तो रेप्लिकेशन यहाँ स्टॉप हो गई है। सो वी विल फाइंड देयर आर टू रेडियो लेवल्ड सेगमेंट हियर। एंड इन द लास्ट ट्यूब यहाँ पर डाइडिऑक्सी TTP जहाँ ऐड होगा वहाँ रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगा। तो पहले पर T में A जो ऐड हुआ, दूसरे में जहाँ टेम्पलेट पर एडिनिन है उसका आगे उसका कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होगा, तो यहाँ पर डाइडिऑक्सी थाइमिन ऐड किए हैं, डाइडिऑक्सी थाइमिन ऐड हुआ है, रेप्लिकेशन यहाँ स्टॉप हो गया है। इन सेकंड टेम्पलेट में पहले में टी में ए और दूसरे ए की जगह जो कॉम्प्लीमेंट्री टी जो ऐड हुआ है दैट टी इज़ नॉर्मोटाइड, दैट इज़ अ नॉर्मल डीऑक्सी TTP, तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ा। और जब नेक्स्ट एडिनिन आता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री टी जो है वो डाइडिऑक्सी TTP ऐड हुआ है, सो रेप्लिकेशन इज स्टॉप हियर। तो अब जब ये रेप्लिकेशन स्टॉप होने के बाद वी विल रन ऑल दीज थिंग्स इन जेल एंड ऑटो रेडियोग्राफी विल ऑटो रेडियोग्राफी वी हैव फाइंड दैट ऑटो रेडियोग्राम एंड दिस टाइप ऑफ बैंड विजुअलाइज्ड एंड रीड द बैंड फ्रॉम बॉटम टू top from 5' to 3'. So see there A T C G A T C G. So the DNA segments were A G A T C G. That is sequence was visualized. Sequence was identified through Sanger. Now same method is described in another way. So see here, this is the DNA जिसका हमें डीएनए सीक्वेंस करना है। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए विद अननोन सीक्वेंस, ये ब्लू पार्ट जो है वो उसको सीक्वेंस करना है। इसमें क्या क्या ऐड किए हैं, डीएनए पॉलीमरेज ऐड, डीऑक्सी CTP, डीऑक्सी TTP एंड डीऑक्सी GTP ऐड किए हैं, और प्लस दे रेडियो एक्टिवली लेबल्ड प्राइमर, यहाँ पर प्राइमर जो है वो रेडियो लेबल्ड ऐड किए हैं। ठीक है, तो अब देखिए फर्स्ट ट्यूब में यहाँ पर ये दिखाया है कि दिस टेम्पलेट विल रेप्लिकेट 3 सेगमेंट, 1, 2 और 3, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर T है, यहाँ पर T है और यहाँ पर T है। जहाँ पर TT है वहाँ पर जो है वो डाइडिऑक्सी एडिनिन और डाइडिऑक्सी एडिनिन ऐड हुआ है। पहले केस में पहले ही नंबर पर डाइडिऑक्सी एडिनिन ऐड होगा तो रेप्लिकेशन यहाँ स्टॉप हुई। दूसरे स्टैंड में पहले नंबर पर तो नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ऐड हुआ है तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ा, और सेकंड थाइमिन जब आया तो डाइडिऑक्सी एडिनिन ऐड हुआ तो रेप्लिकेशन यहाँ पर स्टॉप हो गई। और इन दिस सेगमेंट हियर पहले केस और दूसरे केस में नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ऐड हुए हैं तो रेप्लिकेशन आगे बढ़ी है, और लास्ट में आकर के यहाँ पर ऐड हो गई तो रेप्लिकेशन यहाँ स्टॉप हो गया। तो 3 सेगमेंट वी हैव फाइंड इन दिस केस। तो जब इसको रन कराएंगे जेल में तो वी विल फाइंड दैट 3 बैंड, 1 बैंड, 2 और 3। ठीक है, और
इन बैंड को फिर जो है वो रीड किए हैं, जैसे ए और ए। इस प्रकार ऑल दीज बैंड्स will visualized from the after replication, and the autoradiogram will visualized all bands as here, and we will read 5 prime to 3 prime as, जैसे G बैंड में एक G वाली ट्यूब में लेन में हमको पहला बैंड मिला तो उसको हम G लिखेंगे, A वाले लेन में बैंड मिला A लिखेंगे, C वाले लेन में बैंड मिला उसको C लिखेंगे, T वाले लेन में एक जो बैंड है उसके आगे टी लिखेंगे, और फिर जी वाले लेन में जो बैंड मिला है उसके आगे जी लिखेंगे, फिर अगेन हमने ए वाले लेन में हमको बैंड दिखाई दिया फिर ए लिखेंगे, और फिर उसके नीचे फिर ए वाले लेन में हमको बैंड दिखाई दिया ए लिखेंगे, और फिर हमको जी वाले में बैंड मिला तो जी लिखेंगे, और लास्ट में सी वाले लेन में हमको बैंड दिखाई दिया उसको हम सी लिखेंगे। सो वी हैव फाइंड दिस सीक्वेंस, एंड इसका हम जो कॉम्प्लीमेंट्री तैयार करें एंड द डिड्यूस द सीक्वेंस ऑफ द टेम्पलेट। ये जो सीक्वेंस था वो न्यूली स्टैंड है। अब जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएंगे, जी की जगह सी, ए की जगह टी, और सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, टी का ए, सी का जी का सी, ए का टी और सी का जी का सी और सी का जी। ये हम कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जब हम उसका तैयार करेंगे, दैट इज़ द टेम्पलेट जो जिसको हमको सीक्वेंस करना था वो हमें प्राप्त हो जाता है। सो सी हियर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। 5 प्राइम में क्या था, ये हमको सीक्वेंस यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। ओके, सी टी जी ए, सी टी जी ए, सी टी टी सी जी, सी टी टी सी जी। तो ये ब्लू जो सेगमेंट है डीएनए का, दैट मेथड, और ये हमको रिजल्ट है, ठीक है। दिस इज़ द सेंगर मेथड, also called enzymatic method and also called dideoxy method। इस वाले में और इसमें ये डिफरेंस है कि यहाँ पर जो ऐड किया था ये डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड रेडियो लेबल्ड है, और इस वाली टेक्निक में जो है जो प्राइमर है वो रेडियो लेबल्ड है। कोई भी एक चीज़ टैग कर सकते हैं, चाहे प्राइमर और या फिर डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड। एंड दिस अनदर वे, यहाँ पर ये ATP, CTP और GTP और TTP ये जो है वो रेडियो लेवल्ड है, और यहाँ रेडियो लेवल्ड है तो ये देखिए रेड कलर से विजुलाइज किए गए हैं। इनको जब रन कराते हैं तो हमको बैंड मिलते हैं ऑटोरेडियोग्राम में, और उनको रीड करते हैं इस प्रकार से। नाउ सेंगर्स मेथड हैज़ बीन ऑटोमेटिक जो DNA सीक्वेंसर तैयार किए गए हैं वो सेंगर भी तैयार करेंगे, बिकॉज इट इज़ वेरी सेंसिटिव मेथड एंड हाईली प्रोसेसिव मेथड। मीन्स इसका एक दिन में 1 लाख न्यूक्लियोटाइड तक ये रीड कर सकता है। दिस हैज़ मेड DNA सीक्वेंसिंग मच फास्टर। नाउ advantage of this method is chain termination method have greatly simplified DNA sequencing. This method has been automated with using DNA sequencing kit. इस मेथड के बेस पर DNA sequencing kit भी बनाए गए हैं। नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग ऑफ द प्राइमर टू द DNA and affecting accurate readout of the DNA sequence, and DNA secondary structure affecting the fidelity of the sequence. This is the 2 main disadvantage of this method. Now automated DNA sequencing, आजकल जो मशीनें तैयार कर ली गई हैं, that is very fast, which read the DNA and give DNA sequence within a day। तमाम सारी जो जीन्स हैं जिन पे हमें पता करना होता, कोई भी माइक्रोब से किसी का भी DNA सीक्वेंसिंग पता करना होता है कम समय में, तो ये ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग इज़ वेरी यूजफुल। सो DNA सीक्वेंसिंग इन द रिसेंट ईयर इज़ कैरिड आउट बाय एन ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसर। इन दिस टेक्निक फ्लोरोसेंट टैग आर अटैच्ड टू अ चेन टर्मिनेटिंग न्यूक्लियोटाइड। डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं उनमें फ्लोरोसेंट टैग लगा दिया जाता है। 4 डिफरेंट फ्लोरोसेंट डाइज आर यूज टू आइडेंटिफाई चेन टर्मिनेशन रिएक्शन इन ए सीक्वेंस। जो डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें फ्लोरोसेंट टैग लगाने के कारण जो रेप्लिकेशन है वो स्टॉप हो जाती है, और स्टॉप होने के बाद दैट फ्रेगमेंट इज विजुलाइज्ड बाय द फ्लोरोसेंट टैग। And the DNA bands are separated by electroforces and detected by their fluorescence. Recently, laser absorbing 4 dyes are used for a faster automated DNA sequencing. जो अभी न्यू जनरेशन वाले जो DNA sequencer बनाए जा रहे हैं उनमें लेज़र एब्जॉर्बिंग डाई यूज़ की जा रही है, और वो लेज़र एब्जॉर्बिंग डाई दैट इज टैग्ड विद डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स that can be easily absorb the laser rays and identify the nucleotide position.
It is a rapid and accurate technique. It sequences up to 1 lakh nucleotides per day. The cost workout of automated DNA sequencer is very less. It has been successfully used in human genome project. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसने बहुत अहम रोल प्ले किया है. नाउ सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए सीक्वेंसिंग. जो पूरी डीएनए सीक्वेंसिंग, ये दोनों मेथड जो हमने पढ़ी हैं और जिससे हमने डीएनए सीक्वेंसिंग कैसे करते हैं, ऑटोमेटेड मेथड से भी कैसे करते हैं, इसका क्या फ़ायदा होना चाहिए. सो वी विल फोकस ऑन दिस पॉइंट. द डीएनए सीक्वेंसिंग मेक इट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द फंक्शन ऑफ जीन. जीन कैसे काम करता है उसके बारे में हमें नॉलेज प्राप्त होती है. डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस डेमोन्स्ट्रेट रेगुलेटरी रीजन्स दैट कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन. जीन एक्सप्रेशन करने के लिए जो रेगुलेटरी रीजन है उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं. सीक्वेंसिंग पर पता होगी तो. डीएनए सीक्वेंस एनालिसिस हेल्प्स टू फाइंड जेनेटिक हॉटस्पॉट विच आर ससेप्टेबल टू म्यूटेशन. और हॉट स्पॉट्स को भी आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं डीएनए सीक्वेंस से, जो जिनमें म्यूटेशन की संभावना बनती है. कंपेयर ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस शोज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. Now DNA sequencing helps to allow the level for identification of microbes, and DNA sequencing of virus can be used to identify the viruses and distinguish different strain. वायरस के डिफरेंट स्ट्रेन्स हम पता कर सकते हैं डीएनए सीक्वेंसिंग से. एंड डीएनए सीक्वेंसिंग शोज जीन स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स रिसर्च वर्कर्स टू फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ जीन प्रोडक्ट. Now these are questions. Thank you. Now we will start the next topic. Please wait. Next topic is nanotechnology. कभी कभी इस पे शॉर्ट नोट्स पूछ लिए जाते हैं 2-2.5 नंबर में, तो हमको मालूम होना चाहिए कि नैनोटेक्नोलॉजी है क्या और व्हाट द यूज़ ऑफ नैनोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन. इट इज़ द वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. सो यू शुड नो दैट. अब नैनोटेक्नोलॉजी पढ़ना है और गिकोज लिजार्ड का हम फोटो दिखा रहे हैं, सो डोंट वरी अबाउट इट. सो गिकोज लिजार्ड इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नेचुरल बायो नैनोटेक्नोलॉजी. क्यों है ये, इस वी विल टेल लेटर. नाउ नैनोटेक्नोलॉजी 1 नैनोमीटर 9 लाखवां भाग कितना छोटा होता है, दैट इज़ इक्वल टू 1 नैनोमीटर. और 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच के पार्टिकल्स दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिफरेंट फील्ड ऑफ साइंस. ठीक है, इसलिए नैनोटेक्नोलॉजी का जो नैनोटेक्नोलॉजी इज़ द साइंस फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड कंट्रोल ऑफ मैटर एट डायमेंशंस बिटवीन 1 and 100 नैनोमीटर. नैनोटेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्स imaging, measuring, modeling, manipulating matter at nanoscale, which is applicable to both engineering and medicine. Engineering और medicine दोनों जो है एक दूसरे के पार्ट ऑफ पार्सल हो गए हैं जब से नैनोटेक्नोलॉजी पर स्टडी हुआ है. सो इट वी कैन से दैट इट कैन बी सेड दैट नैनोटेक्नोलॉजी इज अ मैरिज ऑफ मेडिसिन एंड इंजीनियरिंग. USA based physicist, he considered to be a father of modern nanotechnology. Because he deduced that the genome wide variation from one human being is another can be up to a 0.5%. एक इंसान से दूसरे, पूरे संसार में जितने भी पॉपुलेशन है, जितने भी लोग हैं, उनके बीच में जो भी जेनेटिक वेरिएशंस हैं ओनली 0.5%. 99.5% जीनोम आर सिमिलर. So very minute differences are strike his mind कि इतना छोटा डिफरेंस के कारण पूरी दुनिया में वेरिएशंस हैं, सबके अलग अलग नाम हैं. So he did their work in this field. So he known as the father of nanotechnology. Now Norio Tengyushi was a professor in Tokyo University. He acquired the nanotechnology word in 1974. Now many tools of nanotechnology are derived from biotechnology and have a wider application in medicine. When nanotechnology is used for biotechnology advances, it is known as nanobiotechnology. Nanobiotechnology applications in medicine are very wide and include in the field of AIDS, cancer, gene therapy and drug delivery, etc. As I showed this picture in first slide, it was the story behind it. The Gecko's lizard feet
are covered with a nano size here that are intermolecular forces, allowing the lizards to stick firmly to rooftop surfaces etc. इसके जो फीट पर होते हैं बहुत छोटे छोटे से जो है सीटी पाए जाते हैं. Every square millimeter of gecko's foot pad contains about the 14,000 hairs like CT. Each CETA has a diameter of 500 nanometers. Because of this special adaptation of gecko's, lizard can adhere to most surface physiology. Another example is that the folding of flowers and the leaf of touch-me-not plant are said to be based on the natural bio-nanotechnology. Another use of this plant were very fabulous in nanotechnology research. Some scientists chosen this plant for preparing the nanoparticles. He gave there the silver and gold salts for this plant, and he found that after few days spherical shaped silver nanoparticles of 35 to 42.5 nanometer and gold nanoparticles of 24 nanometer are synthesized using touch-me-not plant, and these nanoparticles are isolated from the green extract method of root and flowers respectively. So इसलिए टच मी नॉट का इतना यहाँ इंपॉर्टेंस बनता है. दिस द नेचुरल रिसोर्स दैट कैन बी नेचुरल इंजीनियर्ड प्लांट दैट कैन बी यूज फॉर प्रिपेयरिंग द सिल्वर एंड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स. Size and shape of nanoparticles. As I told you, size of nanoparticle is varies from 1 to they are dendrimers and spherical fullerenes and cylindrical fullerenes, micelles and liposomes, oil and water emulsions like this, and virus-like particles and synthetic virus-like particles. Nanoparticles इनमें से किसी भी shape का हो सकता है ना. It depends on we are using the nanoparticles. The importance of applications of nanoparticles have a very wide scope in all branches of science, but in medicine there are few points through which we can discuss about the application of nanoparticles. Number one, drug delivery. Number two, nanotechnology can be used in therapeutic uses, and imaging technology also have an importance of nanotechnology, and nanotechnology is used in antimicrobial techniques, and cellular also used by done by the nanotechnology particles, and nanotechnology also used as the aquasomes. Now one by one we will discuss all these points in short. So nanotechnology used in drug delivery. Nanoparticles could be used to deliver drugs to a specific type of cells like a cancer cells. Cancer cells में हम किसी भी nanoparticles के माध्यम से हम उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कोई भी ड्रग को कैसे टारगेट कर सकते हैं, that is very important. So nanoparticles are attached to a disease cells which allow to a direct treatment of those cells. तो नैनो पार्टिकल्स जो है वो कैंसर सेल्स के चारों तरफ अडर हो जाते हैं और अडर होने के बाद उसको डिस्ट्रॉय करते हैं. दिस टेक्निक रिड्यूस द डैमेज ऑफ द हेल्दी सेल्स एंड अलाउ द फॉर अर्लियर डिटेक्शन ऑफ द डिसीज़. इस टेक्निक से किसी भी डिसीज़ को हम स्टार्टिंग में पता कर सकते हैं और उसको उसी समय उसको ख़त्म किया जा सकता है. नाउ द ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड इज एनकैप्सुलेटेड विद एन stomach to deliver the drug into a blood stream. It is a very important point, and efforts are underway to develop oral administration of several different drugs using a variety of nanoparticles. अभी इस रिसर्च चल रहा है कि तमाम सारे अलग अलग पार्ट के नैनो पार्टिकल्स के माध्यम से हम कोई सी ड्रग को मोर इफेक्टिव कैसे बना सकते हैं. नाउ थेरेप्यूटिक यूज ऑफ नैनो पार्टिकल्स. Nano cell may be used to concentrate image of the surroundings of healthy cells, and nanoparticles when at this point we can understand why this diagram here. This the nanoparticles is given to the tissue where that carcinogenic cells are present in this. These are the cancer cells which are present in this tissue, and these pinkish cells are healthy cells. So nanoparticles are surrounded these cancer cells and make there the nano cells. See here. So these are nanoparticles are surrounding each cancer cell and make there the nano cells. And near infrared light exposed this tissue where the cancer cell identified. So more and more heat is accumulated
in the cancer cells and they become dead and intact healthy cells. जो हेल्थ को उनको कुछ नहीं होता है और बकाया जो कैंसर सेल है दे कैन बी डेड बाय दिस नैनो शेल थेरेपी. So nano particles when activated by X-ray generate electrons that cause the destruction of cancer cells to which they have attached themselves. This is most beneficial. This is most beneficial techniques in place of radiation therapy, which much less damage to a healthy cells. Now, aluminosilicate nanoparticles can quickly reduce bleeding time in trauma patients by absorbing water, causing blood to clot quickly in wound area, and nanofibers can stimulate the cartilage production in damaged. तो नैनो फाइबर्स को हम जो जॉइंट जहाँ जॉइंट्स पर प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए यूज़ करते हैं. एंड एल्यूमिनोसिलिकेट नैनो पार्टिकल्स वी कैन यूज़ इन ट्रॉमा पेशेंट टू स्टॉप देयर fast bleeding. Imaging technology, use of nanoparticles in imaging technology. Quantum dots may be used for locating tumors in patients and for performing a diagnostic test. The nanoparticles is coated with a peptide that binds to a cancer cells. Once the nanoparticles are attached to a cancer particles or cancer cells, the property of the iron oxide enhances the image from the MRI scan. जब किसी भी टिश्यू के लिए MRI स्कैनिंग की जाती है तो कैंसर सेल जिनको हमने नैनो पार्टिकल से एक्सपोज किया होता है दे एलोबरेट द सिग्नल्स बाय द आयरन ऑक्सीडेज विच इज़ exactly it's clearly identified in MRI scanning. So nanoparticles can attach to a protein or other molecules allowing detection of the disease indicators in a sample that at the very early stage of malignant patient. Now antimicrobial techniques. The use of nanocrystalline silver, which was earliest nanomedicine. The use of nanocrystalline silver, which is an antimicrobial agent for the treatment of wounds. The nanoparticles containing nitric oxide gas are known to kill bacteria. So this is the nano technology which is used in antimicrobial technique. Repair. Nanotechnology used in cellular repair. Nanorobots could be programmed to repair of specific disease cells. The function of the nanorobots is like to antibodies in our body for a natural healing process. See next slide. See here, this is the tissue which is ill tissue which we want to repair. So these are the nanorobots which are given in the body. They are targeted this tissue. They are programmed molecules. They are programmed robotic nanorobots. They attach to the specific tissues which are we want to repair. So like this way we can treat the damaged tissue. Now ecosomes. Ecosomes are recently developed delivered system that are making NIC as the peptide or protein carriers. These are nanoparticles carrier system which three-layered self-assembled structures. The ecosomes comprise the central solid nanocrystalline core and coated with the polyhydrox on the which the biochemically active molecules are adsorbed. तो सेंटर में जो होता है वो सॉलिड नैनो क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स होता है. दैट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टू माइग्रेट दीज एक्वोसोम्स. And the properties of ecosomes are: number one, the solid core provides the structural stability. जो solid core होता है that is provide the structural stability, and the carbohydrate coating act as a dehydroprotective and stabilizer the biochemical active molecules. And due to these two property of maintaining the conformational integrity of bioactive molecules, aquasomes are being proposed as a carrier system for delivery of peptide based drug. Peptide based drug को delivery करने के लिए body में these aquasomes are very important. So
use of aquasomes. Nanotechnology based delivery system has been successfully utilized for the delivery of insulin, hemoglobin and various antigens. So these may be delivered in our body by nanotechnology using the aquasomes. इंसुलिन, हीमोग्लोबिन एंड वेरियस एंटीजेंस और एंटीजेंस लाइक कोई भी ड्रग्स हमको प्रोवाइड करानी होती है बॉडी में, दैट विल बी अ वेरी गुड मेथड to deliver these peptide medicines. Oral delivery of enzyme peptide has also been achieved. Now these are important question. ये पहले से हमने मैडम ने दे दिया, आपको हटाना था उसको. Now इसमें वासुदेवन में जो दिया है that is sufficient for you. Thank you.